हेलो गाइस। ये वीडियो में हम लोग फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फ्यूचर्स के बारे में बात करने से पहले अ क्विक रिवीजन ऑन फॉरवर्ड्स। पहले फॉरवर्ड्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज wherein one party agrees to buy and one party agrees to sell a physical or a financial asset at a specific price on a specific date in the future। तो इसका मतलब समझते हैं। अब एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन टू पार्टीज। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्राइस मेंशन्ड है। उस प्राइस पर इन द फ्यूचर one party has to buy and one party has to sell, and this is irrespective of the market price in the future. Both the parties are obligated to buy and sell at the price mentioned in the contract. तो अब हम लोग अपना एग्जाम्पल देखते हैं। Ritik agrees to buy gold from Abhishek at $300 per ounce 3 months from today. Abhishek agrees to sell gold to Ritik at $300 per ounce 3 months from today. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये समझ लो कि 3 months from today मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड हो चुका है $400 per ounce. Now Abhishek has agreed to sell gold to Ritik at $300 per ounce. मार्केट प्राइस चल रहा है $400 per ounce. That means Abhishek could have sold gold at $400 per ounce, but he has entered into a contract with Ritik, so he is obligated to sell gold at $300 per ounce. Now Ritik has agreed to buy gold at $300 per ounce. Market price चल रहा है $400 per ounce. So if Ritik went to the market to buy gold, he would have bought it at $400 per ounce. But he has entered into a contract which enables him to buy gold at $300 per ounce. Both the parties in this case are obligated to buy and sell gold at $300 per ounce, irrespective of the market price, which is currently $400 per ounce. अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड बाय डीलर्स इन द ओटीसी मार्केट। तो ओटीसी मार्केट होता क्या है? ओटीसी मार्केट इज द ओवर द काउंटर मार्केट. Over the counter market is a dealer market with no central location where the business happens over the phone. So a dealer will try to connect between a buyer and a seller, and the contract will be between the buyer and the seller. तो ये मार्केट का कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं होता, आप ये मार्केट को जाके देख नहीं सकते. ऑल द बिजनेस हैपन्स ओवर द फोन. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात करते हैं. दे आर कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बायर एंड द सेलर. So a forward contract is always between a buyer and a seller, and it can be customized according to the need of the buyer and seller. तो हमारे एग्जाम्पल में Ritik is the buyer and Abhishek is the seller. They can customize the contract according to their needs. But what can they customize within the contract? There are two things that they can customize. First is the quality of the asset. तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बात हो रही है Ritik will buy gold and Abhishek will sell gold. When I say quality of the asset can be customized, गोल्ड के बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटीज आते हैं. 24 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड. अब ऋतिक wants to buy 24 कैरेट of gold and Abhishek has two different qualities of gold available with him. Abhishek has 24 carat gold available with him and Abhishek also has 20 carat gold available with him. So they can discuss amongst themselves. और ऋतिक को जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड चाहिए अगर वो अभिषेक के पास अवेलेबल है तो दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. So they can customize the quality of the asset. The second thing that they can customize is the quantity of the asset. अब for example, Abhishek के पास है 12 kgs of gold, but Ritik only wants to buy 6 kgs of gold. तो they can discuss amongst themselves again. Ritik बोलेगा कि I only have a need for 6 kgs of gold. तो they can customize the quantity of the asset that is being bought and sold according to their needs. अब थर्ड इंपॉर्टेंट की बात करें, पॉइंट की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज विथ अ काउंटर पार्टी. सो देर इज ऑलवेज काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क. इसका मतलब समझते हैं. नाउ दे हैव अग्रीड टू बाय एंड सेल गोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट विच इज $300. फ्यूचर में अगर $400 प्राइस हो गया मार्केट में तो इसका मतलब होता है कि अभिषेक हैज टू सेल गोल्ड एट $300 पर आउंस, जबकि मार्केट में प्राइस चल रहा है $400 पर आउंस. तो वो अगर मार्केट में जाके सेल करता तो उसको $400 मिल सकते थे, लेकिन इस केस में उसको सिर्फ $300 मिलेंगे बिकॉज ही हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म. बट अभिषेक ये कह सकता है कि मुझे परफॉर्म करना ही नहीं है. ही रिफ्यूजेस टू परफॉर्म ऑन द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इस केस में हम इस सिनेरियो को कहते हैं डिफॉल्ट. अभिषेक हैज रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट. Abhishek has refused to sell the gold
to Ritik as he was obligated to do. तो अभिषेक बोल रहा है कि मैं तेरे को गोल्ड सेल करूंगा ही नहीं $300 पर आउंस में, मैं मार्केट में जाके सेल कर रहा हूँ $400 पर आउंस में. इस केस में ऋतिक ज्यादा कुछ कर नहीं सकता. इस केस को डिफॉल्ट कहते हैं क्योंकि ऋतिक का कॉन्ट्रैक्ट वॉज विथ अभिषेक और एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज विथ अ काउंटर पार्टी. द काउंटर पार्टी कैन ऑलवेज डिफॉल्ट. डिफॉल्ट का मतलब होता है व्हेन दे रिफ्यूज टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस. अब बात करते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की. तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर एक्सचेंज ट्रेडेड. तो एक एक्सचेंज होता है, उस एक्सचेंज पर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड. तो यू कैन गो टू द एक्सचेंज एंड यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. Now, if you are entering into a contract, you can take two different positions. The first position that you can take is a long futures position. If you are taking a long futures position, इसका मतलब होता है कि you are agreeing to buy the asset that is mentioned in the contract in the future at the price mentioned in the contract. तो long futures position का अगर मैं मतलब बताऊँ आपको कि तो you are the buyer, you are agreeing to buy in the future. अब the second position that you can take is the short futures position. If you are taking a short futures position, that means you are agreeing to sell the asset in the future at the price mentioned in the contract. तो अगर short futures position याद रखना है तो short futures position का मतलब होता है you are agreeing to sell in the future. अब एक कॉन्ट्रैक्ट दिखता कैसे है ऑन द एक्सचेंज ये देखते हैं. तो आप एक्सचेंज पर जाते हो और आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिखता है. कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द एसेट गोल्ड, डिलीवरी इज इन जून एंड फ्यूचर्स प्राइस इज $400. तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज एंड यू कैन गो टू द एक्सचेंज एंड एंटर इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो ये एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज. अब इसमें आप दो पोजिशन ले सकते हो, लॉन्ग फ्यूचर्स पोजिशन एंड शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन. तो इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लॉन्ग फ्यूचर्स पोजिशन लेते हो तो उसका मतलब होता है कि यू आर अग्रीइंग टू बाय गोल्ड इन जून एट $400 पर आउंस. और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में आप शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन लेते हो तो इसका मतलब है यू आर अग्रीइंग टू सेल गोल्ड इन जून एट $400 पर आउंस. तो ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि व्हेन इन जून आर वी टॉकिंग अबाउट. तो इन इंडिया the futures contracts are settled on the last Thursday of the month. और अगर last Thursday of the month पे holiday है तो you are they are settled on the previous day which is the last Wednesday of the month. तो अगर आप long futures position ले रहे हो इसका मतलब है कि you are agreeing to buy gold on the last Thursday of June at $400 per ounce. एंड ऐसे ही अगर आप शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन ले रहे हो तो इसका मतलब है यू आर अग्रीइंग टू सेल गोल्ड ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ जून एट $400 पर आउंस. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द एसिड गोल्ड, डिलीवरी मार्च में है एंड फ्यूचर्स प्राइस इज $364. तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉन्ग फ्यूचर्स पोजिशन ले रहे हो इसका मतलब है कि यू आर अग्रीइंग टू बाय गोल्ड एट $364 पर आउंस ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ मार्च. और इसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन ले रहे हो तो इसका मतलब है यू आर अग्रीइंग टू सेल गोल्ड एट $364 पर आउंस ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ मार्च. अब हम की पॉइंट्स की बात करते हैं जो इस स्लाइड पे हमें समझ में आया है. द फर्स्ट की पॉइंट इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एक्सचेंज ट्रेडेड. इस पे मैंने बात की कि एक एक्सचेंज होता है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड. सेकेंड की पॉइंट की बात करें तो if you go to the exchange, contracts for different delivery months are already listed. तो हमने देखा कि जून की डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिस्टेड, ऐसे ही मार्च की डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिस्टेड. तो फॉर डिफरेंट डिलीवरी मंथ्स द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी listed on the exchange and you can just go to the exchange and enter into the contract. थर्ड पॉइंट की मैंने बात की, in India the contract is settled on the last Thursday of the delivery month. If the last Thursday is a holiday, then settlement is done on the previous day. इसका मतलब होता है कि if you are entering into a contract to buy an asset in June, उसका मतलब है कि you are agreeing to buy the asset on the last Thursday of June. And if you are willing to sell the asset in June, that means you are entering into a contract to sell the asset on the last Thursday of June. अगर last Thursday को holiday है तो फिर Wednesday को contract settle हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द लिस्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैव द फ्यूचर्स प्राइस. यू कैन ईदर अग्री टू बाय एट दिस प्राइस विच इज अ लॉन्ग फ्यूचर्स पोजिशन और यू कैन सेल एट दिस प्राइस विच इज अ शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन.
तो हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्यूचर्स प्राइस मेंशन्ड होता है, तो जून के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर $400 पर आउंस फ्यूचर्स प्राइस मेंशन्ड था। तो आप कॉन्ट्रैक्ट को उसी प्राइस पे एंटर कर सकते हो। यू कैन टेक अ लॉन्ग फ्यूचर्स पोजिशन, उसका मतलब होगा कि यू आर रेडी टू बाय एट $400 पर आउंस, और यू कैन टेक अ शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन विच इज यू कैन सेल एट $400 पर आउंस। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्यूचर्स प्राइस ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर्स प्राइस डिटरमिन कैसे होता है या फ्यूचर्स प्राइस चेंज कैसे होता है। तो फ्यूचर्स प्राइस लाइक एनी अदर प्राइस इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इसका मतलब क्या है हम ये समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। हमारे एक्सचेंज पर एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड है। ये कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द एसेट गोल्ड, डिलीवरी जून एंड फ्यूचर्स प्राइस $400। कोई भी इंसान ये एक्सचेंज पर आ सकता है एंड ही कैन ईदर एंटर इनटू अ लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन, जिसका मतलब है ही विल बाय द एसेट विच इज गोल्ड एट $400 पर आउंस इन जून, और he can enter into a short futures position which means that he will sell the asset at $400 per ounce in June। तो हमारे एक्सचेंज पर जिस पर ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड है उस पर 6 लोग आते हैं एंड 6 people आर रेडी टू एंटर इनटू द लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन, यानी कि 6 people आर रेडी टू बाय गोल्ड in the future in June at $400 per ounce। On the other side सिर्फ 2 लोग आते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन में एंटर करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ 2 लोग हैं who are ready to sell gold at $400 per ounce in June। क्योंकि 6 लोग आर रेडी टू बाय एट $400 पर आउंस और ऑन दी अदर साइड सिर्फ 2 लोग आर रेडी टू सेल, इसके लिए फ्यूचर्स प्राइस इंक्रीज होके $402 पे चले जाएगा। तो इस स्लाइड पर हमने 2 की पॉइंट्स समझे। पहला की पॉइंट है कि फ्यूचर्स प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, और जो सेकंड पॉइंट है वो है कि इफ ऑन द एक्सचेंज मोर पीपल आर रेडी टू बाय एट द फ्यूचर्स प्राइस, यानी कि लॉन्ग फ्यूचर्स पोजिशन वेयर दे विल बाय द एसेट इन द फ्यूचर, देन फ्यूचर्स प्राइस विल इंक्रीज। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें, एसिड गोल्ड, डिलीवरी जून, फ्यूचर्स प्राइस $400, यही कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर लिस्टेड है, और जिस एक्सचेंज पर लिस्टेड है ये कॉन्ट्रैक्ट उस पर 2 लोग ही आते हैं जो लेना चाहते हैं लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन, यानी कि सिर्फ 2 ही लोग हैं हु वांट टू बाय द एसेट इन जून एट $400 पर आउंस। ऑन द अदर साइड 6 लोग आते हैं एक्सचेंज पर who are ready to take a short futures position, यानी कि 6 लोग are ready to sell gold at $400 per ounce इन जून। अब 6 लोग सेल करने को रेडी है बट सिर्फ 2 लोग बाय करने को रेडी है, इसके लिए प्राइस डिक्रीज हो जाता है टू $398। तो इस स्लाइड पर हमने सीखा कि इफ ऑन द एक्सचेंज मोर पीपल आर रेडी टू सेल एट द फ्यूचर्स प्राइस, यानी कि दे वांट टू टेक द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन, देन फ्यूचर्स प्राइस विल डिक्रीज। अब लास्ट हम बात करते हैं ऋतिक और अभिषेक वाले एग्जाम्पल की। ऋतिक वांट्स टू बाय गोल्ड इन द फ्यूचर एंड अभिषेक वांट्स टू सेल गोल्ड इन द फ्यूचर। तो फॉरवर्ड्स के केस में ऋतिक का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली अभिषेक के साथ होगा, बट फ्यूचर्स के केस में कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। तो ऋतिक कैन डायरेक्टली गो ऑन टू द एक्सचेंज, एक्सचेंज पर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड एंड ऋतिक कैन एंटर इन टू वन ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्ट्स। Now, if he's entering the contract, he can take 2 positions, a long futures position and the short futures position. बट ऋतिक को बाय करना है गोल्ड इन द फ्यूचर, इसके लिए ही विल टेक द लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन। सिमिलरली अभिषेक भी एक्सचेंज पे जाएगा, अभिषेक एक्सचेंज पर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज एंड ही विल एंटर इनटू वन ऑफ दोस कॉन्ट्रैक्ट्स। ही विल टेक द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन बिकॉज उसको सेल करना है गोल्ड इन द फ्यूचर। अब इस केस में फॉरवर्ड्स के केस में पहले तो बात करते हैं, फॉरवर्ड्स के केस में ऋतिक एंड अभिषेक न्यू ईच अदर, but futures के केस में Ritik is just going on the exchange and entering into a contract. Abhishek is also just going on an exchange and entering into a contract. So both the parties don't know who is there on the other side of the contract because they are just entering into a contract on the exchange. अब हम बात करते हैं कि एक्सचेंज बीच में आ गया तो और क्या होता है। बिकॉज एक्सचेंज बीच में आ गया तो एक्सचेंज स्टैंडर्डाइजेस द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। फॉरवर्ड्स के केस में ऋतिक का कॉन्ट्रैक्ट वाज विद अभिषेक, इसके लिए दे कुड नेगोशिएट विद ईच अदर ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट in case of futures there's an exchange in middle, and because there's an exchange in between, that is why the exchange standardizes the contract terms. So what does the exchange standardize? The exchange standardizes two things. The first thing is the quality of the asset. हम लोग गोल्ड फ्यूचर्स की बात कर रहे थे, ऋतिक वांट्स टू बाय गोल्ड एंड अभिषेक वांट्स टू सेल गोल्ड। तो लेट्स लुक एट व्हाट terms does the exchange keep for quality of asset when it is a gold futures contract. So the exchange specifies
that the quality of gold is supposed to be 995 purity, serially numbered gold bars supplied by the LBMA. Exchange has standardized this. In case of forwards, Ritik and Abhishek could negotiate with each other and they could decide on the quality of the asset. But in case of futures, the exchange has already standardized the quality of the asset. The second thing that the exchange can standardize is the quantity of the asset. So if you go on an exchange, you can enter into one contract, you can enter into two contracts, you can enter into three contracts. If you enter into one contract, you can either take a long futures, which means you will buy, or you can take a short futures, which means you will sell. In both cases, either long or short, the exchange specifies how much gold you should buy or you should sell if you are entering into one contract. So एक contract में how much you have to buy या how much you have to sell is specified by the exchange. तो gold futures के केस में अगर gold futures को consider करें तो 1 kg per contract. That means if you are going long futures, long gold futures, you have to buy 1 kg of gold per contract in the future. Similarly, if you are going short futures on a gold futures contract, you have to sell 1 kg of gold in the future. गोल्ड मिनी फ्यूचर्स भी आते हैं. गोल्ड मिनी फ्यूचर्स के केस में 100 grams per contract is the specification by the exchange. So if you take a long futures position in the gold mini futures, that means you have to buy 100 grams of gold. And if you have taken a short futures position, you have to sell 100 grams of gold. ये सब हमने सीखा. अब हम ये वीडियो में दो मेन चीज़ों पे बात कर रहे थे. ये दो मेन चीज़ें थी कि फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में डिफरेंस क्या है. तो पहला डिफरेंस जिस पे हमने बात किया था वो था कि फॉरवर्ड्स आर क्रिएटेड बाय डीलर्स इन द ओटीसी मार्केट, whereas फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड. तो फ्यूचर्स में एक्सचेंज बीच में आ जाता है. और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हमने बात की वो है कि फॉरवर्ड्स कैन बी कस्टमाइज्ड. व्हाई कैन दे बी कस्टमाइज्ड? बिकॉज ऋतिक का कॉन्ट्रैक्ट इज विद अभिषेक, so they can negotiate with each other on the terms of the contract and they can customize the terms of the contract. But futures के केस में exchange बीच में आ गया. अब क्योंकि exchange बीच में आ गया, the exchange specifies the terms of the contract, so the terms of the contracts are standardized.